नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं जीपीएमसी न्यूज़ 24/7 लाइव। વૃંદાવનમાં શતાબ્દી આનંદ મહોત્સવમાં હિન્દુ સમાજ એકત્રિત થશે તો જ રાષ્ટ્ર મજબૂત થશે. સતપંથાચાર્ય જ્ઞાનેશ્વર દેવાચાર્યજી મહારાજ. વૃંદાવનમાં વિરક્ત શિરોમણી બ્રહ્મલીન વામદેવજી મહારાજ આનંદ મહોત્સવના દિવ્ય મંચ પર બીજા દિવસના દ્વિતીય સત્રનું જગદગુરુ સતપંથાચાર્ય જ્ઞાનેશ્વર દેવાચાર્યજી મહારાજે અધ્યક્ષપદેથી કરેલા પ્રવચન સાથે સમાપન થયું હતું. આ ત્રિદિવસીય મહોત્સવમાં દેશભરના પ્રસિદ્ધ સંતોની હાજરી મહાકુંભના કોઈ સફળ મહોત્સવ કરતાં વધુ હોવાનું અનેક સંત મહાત્માઓએ પોતાના પ્રવચનમાં જણાવ્યું હતું. 2 દિવસમાં થયેલા 4 સત્રમાં અધ્યક્ષપદ જૂના અખાડાના આચાર્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી અવધેશાનંદજી સહિત 3 અખાડાના આચાર્ય મહામંડલેશ્વરે શોભાવ્યું હતું. દેશના પ્રસિદ્ધ સંતોની વ્યાપક હાજરી ધરાવતા મહોત્સવના ચોથા સત્રમાં સતપંથાચાર્યજીનું અધ્યક્ષપદ હોવું એ ગુજરાત અને સતપંથ સંપ્રદાય માટે ગૌરવની ઘટના છે. જ્ઞાનેશ્વર દેવાચાર્યજી મહારાજે પોતાના પ્રવચનમાં જણાવ્યું હતું કે અયોધ્યાના રામ મંદિરના આંદોલનમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપનાર અને તમામ સંપ્રદાયોને એક મંચ પર લાવી અખિલ ભારતીય સંત સમિતિની સ્થાપના કરનાર વિરક્ત શિરોમણી બ્રહ્મલીન વામદેવજી મહારાજમાં વસિષ્ઠ ઋષિના દર્શન થતા હતા. તેમના દિવ્ય વ્યક્તિત્વ અને કાર્યોને કારણે સંતોને તેમના પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને સ્નેહની ભાવના હતી. તેમણે હિન્દુઓ એક થાય એ માટે અનેક ગૌરવશાળી પ્રવૃત્તિઓ કરી હતી. અયોધ્યા બાદ કાશી મથુરા માટેનો તેમનો સંકલ્પ હવે આપણે સૌએ પૂર્ણ કરવાનો છે. આ ઉપરાંત વિધર્મીઓએ તોડેલા અનેક મંદિરોનું પુનઃનિર્માણ કરવાનું છે. મંચ પરથી હાકલ કરતા સતપંથાચાર્યજીએ જણાવ્યું હતું કે હિન્દુ સમાજ એકત્રિત થશે તો જ રાષ્ટ્ર મજબૂત થશે. આપણે વિરોધી તાકાતોનો સામનો કરી શકીશું. મહારાજશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે વામદેવજીને સતપંથ સંપ્રદાય માટે અને સંપ્રદાયના જગદગુરુ કરસનદાસજી માટે અત્યંત સદ્ભાવ હતો. આ સાથે મહામંડલેશ્વર સ્વામી જનાર્દન હરિજી મહારાજે પણ સતપંથ સનાતન ધર્મના ખોટા વિખવાદો ઊભા ના કરતા સમાજમાં વિભાજન ના કરો, સર્વે હિન્દુઓ છીએ તો એકતા બતાવો એ વિષય પર મહત્વપૂર્ણ સંબોધન કર્યું હતું. સતપંથ સંપ્રદાયની પ્રેરણાપીઠ આયોજિત 4 વિરાટ સંત સંમેલનમાંથી 2 સંત સંમેલનમાં વામદેવજી મહારાજની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ હતી. આ મહોત્સવમાં સંતોની સેવા માટે સતપંથાચાર્ય જ્ઞાનેશ્વર દેવાચાર્યજી મહારાજની પ્રેરણાથી દેવજીભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં મુંબઈ, ગુજરાત, કચ્છ, નાસિક, પૂના, મહારાષ્ટ્ર ખાતેથી 50 સ્વયંસેવકો છેલ્લા 5 દિવસથી કાર્યરત છે. તેમના સેવામય સમર્પણને હાજર સંતો અને ભક્તો બિરદાવી રહ્યા છે. સાથોસાથ સતપંથ રત્ન મહામંડલેશ્વર જનાર્દન હરિજી મહારાજ પણ મહોત્સવના આયોજનમાં સક્રિય છે. ભૂતકાળમાં સતપંથ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓએ અયોધ્યા મંદિરના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે પણ અદ્ભુત સેવા પૂરી પાડી હતી. આ ઉપરાંત રાષ્ટ્ર, ધર્મ અને ગોસેવા ક્ષેત્રે પણ તેમની વિભિન્ન સેવાઓની નોંધ લેવાઈ છે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, બજરંગ દળ અને અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ સહિત અન્ય સંસ્થાઓની વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં પણ પ્રસંગોપાત તેઓ પોતાની સેવાઓ દ્વારા યોગદાન આપતા રહ્યા છે. રિપોર્ટર ચેતન ભગત, મેનેજર તીર્થધામ પ્રેરણાપીઠ, જીપીએમસી ન્યૂઝ 24/7 લાઈવ. रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय. वृंदावन की इस पावन भूमि में जहाँ पल में कृष्ण का जाप मिलता है, इसी पवित्र भूमि पर शताब्दी आनंद महोत्सव का आयोजन महाबलेश्वर रामदेव जी ने किया है. गत साल से उनके मन में विचार था और आज तो संकल्प परिपूर्ण होने जा रहा है. रामदेव जी महाराज के प्रति सभी की श्रद्धा और महाबलेश्वर रामदेव जी महाराज का स्नेह की वजह से सारे भारतवर्ष के महात्माओं
में मौसम में उपस्थित रहे हैं। सभी को ब्रह्मनिष्ठ अमृत जी महाराज के प्रति श्रद्धा थी और है। महाराज जी का जीवन ही सभी को प्रेरणादायक। ऐसे महापुरुष कलयुग में बहुत कम दिखे जा रहे हैं। मुझे तो उनमें वशिष्ठ ऋषि का दर्शन होता है, क्योंकि उनकी विद्वता, ज्ञान, वेद वेदांत, उपनिषद, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन हो कि सत दर्शन हो, सभी में वो पारंगत थे। पारंगत तो सब होते हैं, मगर विरक्त कम होते हैं। भारत से तो विरक्त, मगर विरक्त शिरोमणि थे। उनको कुछ करने का नहीं था, वो तो ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म भाव में रहते थे। मगर हिंदुओं के प्रति उनका जो भाव था, देश के प्रति उनका जो भाव था, वो बैठे नहीं रहे। क्योंकि जीवन मुक्त पुरुष की हैसियत से उन्होंने ये कार्य किए। मेरे हिंदू एक हो, संगठित हो, वो भावना उनके हृदय में थी। तो कैसे ही संगठित बने? व्यक्ति तो संगठित नहीं बन सकता है, ये कार्य बहुत मुश्किल है। मगर इस देश में कई संप्रदाय हैं, अगर वो सभी संप्रदाय एक साथ जुड़ जाए और एकत्रित हो जाए तो ये कार्य सफल होगा। इसलिए महाराष्ट्र में 150 से ज्यादा सभी संप्रदाय को एक साथ में जोड़े और आज फिर भारतीय संघ समिति के नाम से वो संगत कार्य कर रहा है। महाराज जी अखिल भारतीय संघ समिति के अध्यक्ष रहे और भारतवर्ष में हिंदू एकता को संदेश दिया। कई सम्मेलन हुए उनके भारत के आदर्श से, उनके स्नेह से 4 सम्मेलन हुए। इसमें 2 सम्मेलन में महाराष्ट्र उपस्थित रहे थे। एक सम्मेलन में तो 1500 साधु महात्मा मंच पर थे। 40 से 50 हजार लोग उस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए थे। ऐसा एक बॉम्बे में सम्मेलन हुआ, पश्चिम में नखत्राणा में हुआ और साबरकांठा में वहाँ एक कलोल में हुआ सम्मेलन। महाराज हमारे दादा गुरु जगतगुरु वसुंधरा जी महाराज प्रति उनका बहुत स्नेह था और उनका ये ऋण है, हम भूल नहीं सकते हैं। इसलिए महाबलेश्वर अंदर गिरिपुर पहले गतसाल में मिले थे तो महाराज को बोले थे हमने कि इस यज्ञ में हम किस तरह सेवा दे सकते हैं, आप जैसे कहो हम करेंगे। तो उनके भाव से हम हो सके इतनी सेवा दे रहे हैं। महाराज से महाराज के बारे में सभी संतों ने बताया, सबको बोलना था, क्योंकि कई महात्मा ऐसे हैं कि उनके साथ समय बीता है। बहुत प्रसन्न है, वो कहना चाहते थे महाराज सिंह के लिए, मगर समय के हिसाब से सभी महात्मा को पूरा समय नहीं दिया गया है, क्योंकि सभी महात्माओं के 2 शब्द सुनने थे। सबकी भावना थी विरक्त शिरोमणि थी प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। वो तो गए, मगर हमको कह के गए कि मेरा अधूरा काम आपको पूरा करना है। राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत थोड़ी से आंदोलन चलाया, सफल भी हुए, राम मंदिर भी बना, मगर एक ही उद्देश्य नहीं था
काशी विश्वनाथ और मथुरा की भूमि को भी मुक्त कराना था, नए मंदिर वहाँ भी बनाने थे, और कई ऐसे मंदिर है जो विदर्भियों ने उसका नाश किया था, उन सभी को पुनरुद्धार करने का उनका इरादा था। आज वो नहीं है, मगर उनकी शक्ति सभी महात्माओं के अंदर है। सभी महात्मा हम मिलकर उनका जो उद्देश्य था उस परिपूर्ण करें, और यही श्रद्धांजलि होगी। उनके जो आदर्श थे वो हम पूरा करें। आज भी उनका सूक्ष्म ये हमारे पीछे ही है, हमको आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे अरविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि किसी ने मुझे धक्का दिया और ये प्रोग्राम हो गया है, तो धक्का क्या है? गुरु महाराज ने दिया, उन्होंने सबको जगाया है। आज वो ऐतिहासिक घटना बनेगी। इतने महात्मा, आज कई आचार्य, कई महामंडलेश्वर, कई बहन आज इस मंच पर उपस्थित है। इनकी कृपा से ये सब हो रहा है, और हम उनकी विचारधारा से हम संगठित बने, देश को मजबूत बनाए, हिंदू संप्रदाय को मजबूत बनाए, हमारी जो परंपरा हिंदू सनातन परंपरा है उसको भी मजबूत बनाए। और सभी के हाथ खड़े होते हैं जब जय बोलते हैं, तो हाथ सिर्फ खाली नहीं, हाथ में लाठी भी हाथ में हो और हाथ खड़ा जब रहेगा तब हम विद्युत के सामने लड़ सकेंगे। और उन्होंने जो प्रेरणा दी है उनका तो महिमा हम वर्णन नहीं कर सकते, मगर हृदय से हम उनको प्रणाम करते हैं। और इस ऐतिहासिक घटना में हमें भी कुछ देने का जो मौका मिला है, तो हम भी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, और सभी महात्मा के चरणों में मैं वंदन करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। मैंने सभी भक्तों से निवेदन किया है, हमारी आज उत्तर प्रार्थना है। आपको प्रार्थना होने के बाद जब तक सभी मैं मानता हूँ कि स्वामी जी का जो कार्य कर्तृत्व है, स्वामी जी ने जो कार्य किया है, उसका परिणाम ये 5वां सत्र है कि हम इतने संत महात्माओं के दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। मेरे जैसे सभी युवा संतों के लिए स्वामी जी का जीवन चरित्र एक आदर्श है। आदर्श इसलिए है कि स्वामी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में जो भी कार्य किया है, जहाँ तक मैंने स्वामी जी से सुना है विरक्त शिरोमणि के बारे में, कभी उन्होंने अपने आप को स्वयं को आगे नहीं रखा और हमेशा अपने राष्ट्र को और अपने धर्म को उन्होंने आगे रखने की कोशिश की है। अगर आज के सभी युवा संत, अगर हम स्वामी जी के इन आदर्शों को लेकर धर्म को आगे रखते हुए अपने राष्ट्र को राष्ट्र देवो भव इस भावना के साथ अगर हम धर्म समाज का और अपने धर्म को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो मैं मानता हूँ वही सच्ची श्रद्धांजलि और स्वामी जी के श्री चरणों में वही सच्चा प्रणाम होगा। क्योंकि जब तक हम स्वयं को आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे, धर्म से भी और राष्ट्र से भी अपने आप को बड़ा समझकर अपने आप को पूजते रहेंगे, तो मैं मानता हूँ कि हम गलत दिशा में शायद जा सकते हैं। लेकिन स्वयं से भी आगे धर्म और राष्ट्र को जैसे स्वामी जी ने रखा, जब इस राष्ट्र पर संकट आ रहे थे, जब विधर्मियों का आक्रमण हो रहा था, जब संप्रदाय जाति समाज में हिंदू समाज बट रहा था, जब विभाजन हो रहा था या विभाजन कराया जा रहा था, हिंदू सनातनियों को अलग अलग किया जा रहा था संप्रदाय परंपरा और समाज के नाम पर,
तब जरूरत थी कि सभी संप्रदाय, परंपरा, जाति, समाज के लोग संगठित हो और पूरे भारत वर्ष के सभी संत महात्माओं ने पूज्य चरण विरक्त शिरोमणि वामदेव जी महाराज श्री को प्रार्थना की और विरक्त शिरोमणि जी ने जो आवाहन किया, उनके आवाहन पर जो समाज बट रहा था जाति संप्रदायों में, जो अलग अलग परंपराओं में हिंदू सनातनी समाज बट रहा था, स्वामी जी ने एक आवाज दी और स्वामी जी के एक ही आवाहन पर अखिल भारतीय संत समिति का निर्माण हुआ, जिसके चलते भारतवर्ष के सभी संप्रदाय संगठित हुए। जय जय। सभी संप्रदाय एक हुए, सभी जाति समाजों में जो विभाजन हो रहा था वो रुका। अगर सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा संगठन जो तैयार किया होगा, निर्माण किया होगा, जिससे ये विभाजन रुका, जिससे हिंदुत्व का, हिंदुओं का, सनातनों का संगठन बढ़ा, उसका नाम है अखिल भारतीय संत समिति। आज जरूरी है कि जब हम श्रद्धेय स्वामी जी का स्मरण कर रहे हैं तो हम अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से सभी समाजों को, संप्रदायों को, परंपराओं को जोड़ने का काम करें। मैं जिस संप्रदाय से आता हूँ, सनातन सतपंथ संप्रदाय, इस संप्रदाय को जब आवाहन किया गया पूज्य स्वामी जी के द्वारा कि एक अधिवेशन प्रेरणापीठ में होना चाहिए, तो वहां पर अखिल भारतीय संत समिति का 10वां अधिवेशन हुआ था, जिसमें 1500 से 2000 संत महात्माओं की उपस्थिति थी और जिसके यजमान प्रेरणापीठ था। स्वामी जी ने आग्रह किया मुंबई में एक अधिवेशन होना चाहिए, जिसका स्मरण आप करा रहे थे। वो घाटकोपर में हुआ और घाटकोपर में भी 1500 से 2000 संत महात्मा एक मंच पर उपस्थित थे। ये स्वामी जी का प्रभाव था। इसी तरह अगर हम स्वामी जी के इस संगठन को, स्वामी जी के इन कार्यों को आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूं राष्ट्र एक होगा। आज राष्ट्र के लिए जरूरी है कि हिंदू सनातनी बटने से बचे, वो जागरूक हो। आज विधर्मियों से जिस तरह का खतरा है, उस तरह अगर हम आलसी बने रहे, ऐसे ही हम अनास्था अपने धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने हृदय में बनाते रहेंगे, तो मैं मानता हूं कि फिर स्वामी जी ने जो कार्य किया था वो अधूरा रहेगा। लेकिन यह स्वामी जी के द्वारा पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी आनंद देव जी के द्वारा जो ये आयोजन हुआ, आज हम उसके दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे जैसे संत को, मेरे जैसे युवा संत को यहाँ मंच पर उपस्थित रहना भी सौभाग्य है। मैं तो मानता हूँ ऐसा दर्शन बार बार संत समाज का होता रहेगा, तो मेरे जैसे जो भावना आपकी है कि संतों का निर्माण हो, तो जरूर संतों का निर्माण होता रहेगा। स्वामी जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तो मानता हूँ ऐसे दिव्य महात्मा के ऐसे आयोजन में सम्मिलित होकर झाड़ू लगाने की सेवा भी मेरे जैसे किसी महामंडलेश्वर को मिल जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ। इतना पुरुषार्थ स्वामी जी का रहा है स्वामी जी के श्री चरणों में, और मैं स्वामी जी के भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आपने इतनी जो रिस्क ली है, इतने सभी महात्माओं को निमंत्रण, मंच पर सबका यथायोग्य सम्मान, मैं इसके लिए स्वामी जी को भी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपके कारण ये सब दर्शन भी हम सबको हो रहा है और एक प्रेरित सनातनी यहाँ पर हो रहे हैं। तो मैं समूचे मंच को प्रणाम करता हूँ, स्वामी जी को भी प्रणाम। एक बात कह करके मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि आप कुछ कहेंगे। मैं बार बार इस बात से सहमत हूँ जो स्वामी हमारे महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी कह रहे थे। मैं एक बात अनुभव करता हूँ, 30 वर्ष के बाद भी पूज्य महाराज जी के प्रति ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा, उस एकता का भाव कि आज सारे संत इकट्ठे हो गए, इतने भक्त इकट्ठे हो गए। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है। संत या भक्त या लोग या हिंदू, ये तो जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, किसी एक नेतृत्व की जरूरत है जो वामदेव जी से जैसा हो। नारायण नारायण। मैं एक छोटी सी बात कह करके आपकी आज्ञा हो, अध्यक्ष जी की आज्ञा हो। एक बार वृंदावन में